Yeah, good morning. Good morning. So once again, I welcome in the course Geotechnical Engineering and very good morning to all of you. So in the last class, I have discussed the stability of slope and we have seen that how to compute the factor of safety when our soil is dry or moist soil or for the cohesionless soil, and then for we have seen that the factor of safety with respect to factor of safety in C5 soil, and we have seen that the expression of stability number and the critical height, how to compute the critical height. So let us discuss what we have discussed in the last class. So firstly, I have discussed uh, the normal stress acting on the slope, that is sigma n is equal to gamma z cos square beta, and the shear stress that is equal to gamma z into cos beta into sin beta. In case of cohesionless soil, first case I have discussed, that is for cohesionless soil, and in the first case when soil is dry, soil is dry, so factor of safety we have computed, that is tau f by tau, that is equal to tan phi divided by tan beta, where phi is the angle of internal friction and beta is the slope angle. When soil is submerged, so in that case we have seen that factor of safety is exactly equal to the in case of dry soil, so it is also tan phi by tan beta. Second case we have discussed for C5 soil. For C5 soil, so C5 soil factor of safety we have seen that tau f by tau, that is equal to C plus sigma n tan phi divided by tau, or we can write C plus sigma n can be written as gamma z cos square beta into tan phi divided by gamma z into sin beta into cos beta. So this is the factor of safety. After that, we have discussed the stability number. So stability number Sn is equal to C by gamma into Sc, that is equal to cos square beta into we can write cos square beta into tan beta minus tan, where C is the cohesion, Sc is the critical height, and Sn is the stability number, beta is the slope angle, and phi is the angle of internal friction. Similarly, we have written the mobilized cohesion Cm is equal to C by factor of safety, and similarly the factor of safety we can write Sn is equal to Cm by gamma into H, or we can write C by factor of safety into gamma into H. This thing we have discussed. Similarly, the factor of safety in terms of critical height is C by H. So this thing we have discussed in the last class. So next case, that is case third, that is slope is subjected to steady seepage and water table is at a depth h above the critical plane, then what will be the factor of safety? So let us assume this is our slope, ये हमारा slope है, this is our slope, and slope का angle जो है वो कितना है, that is beta, this is beta, और ये हमारा जो है CD जो है ये this is the critical plane, CD is the critical plane. तो बोला जा रहा है कि स्लोप जो सीपेज जो हो रहा है वो पैरेलली हो रहा है, स्लोप सब्जेक्टेड टू स्टेडी सीपेज हो रहा है, और जो वाटर टेबल का लोकेशन है, लेट अस अज्यूम कि दिस इज द लोकेशन ऑफ वाटर टेबल, ये हमारा जो है वो पोजीशन है वाटर टेबल का, जो कि कितने हाइट पे है, तो विच इज एट ए हाइट ऑफ h अबव द क्रिटिकल प्लेन, ये क्रिटिकल प्लेन है, और ये पूरा का डेप्थ तो हमने पहले ही से अज्यूम किया है कि ये डेप्थ कितना है, दैट इज z, सब जगह हमने z लिया है, ओके, और यहाँ पे हमारा स्टेडी सीपेज हो रहा है, दिस इज द फ्लो लाइन. सो यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैन बी रिटन एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट इज इक्वल टू 1 माइनस गामा w इंटू h डिवाइडेड बाई
गामा सेट इंटू जेड इंटू tan phi बाई tan बीटा। तो ये हमारा फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जहां पे भी वाटर टेबल का पोजीशन जो है आपका क्रिटिकल प्लेन से h हाइट, तो यहाँ पे जो होगा वो इस तरह निकाला जाएगा। ये सारा चीज तो हमें मालूम है कि बीटा क्या है हमारा स्लोप एंगल, बीटा इज द स्लोप एंगल, पाई इज द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। और गामा सेट क्या है हमारा, तो गामा सेट जो है वो सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल, सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल। और एच क्या है, स्मॉल एच इज द हाइट above the critical plane। so height of water table होगा, height of water table above the critical plane। so इस तरह से हम लोग निकालेंगे। अगर ये z की वैल्यू, ये h की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पहुंच जाए, ग्राउंड सरफेस पे पहुंच जाए, इस स्लोप जो हमारा जो स्लोप है वहां पे पहुंच जाए, सो अगर इफ h इज इक्वल टू z, इफ h इज इक्वल टू z, देन क्या होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू z हो गया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस गामा w इंटू h के जगह पे हमने z रख दिया, डिवाइडेड बाई गामा सेट इंटू z इंटू tan phi बाई tan बीटा। तो यहां से z कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, गामा सेट माइनस गामा w, गामा सेट माइनस गामा w डिवाइडेड बाई गामा सेट इंटू tan phi बाई tan बीटा। अब गामा सेट माइनस गामा w को हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये दिस इज गामा सबमर्ज बाई गामा सेट इंटू tan phi डिवाइडेड बाई tan बीटा। सो यहां से हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होगा, ये जो हमारा कब होगा, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब होगा हमारा, जब सीपेज जो होगा, सीपेज पैरेलल टू दी ग्राउंड। जब हमारा सीपेज जो है वो पैरेलल टू द ग्राउंड होगा या पैरेलल टू द स्लोप होगा, जो पैरेलल टू द स्लोप होगा तब हमारा क्या होगा, यहाँ पे पैरेलल टू दी स्लोप अगर होगा हमारा सीपेज पैरेलल टू स्लोप, इन दैट केस हमारा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा दैट इज गामा सेट सबमर्ज बाय गामा सेट इनटू tan phi बाई tan बीटा। और ये जो गामा सबमर्ज की वैल्यू जो होती है, गामा सबमर्ज, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आप देखोगे तो 1/2 इंटू गामा सेट। तो यहां से इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ये भी लिख सकते हैं, गामा सबमर्ज बाई गामा सेट कितना हो जाएगा 1/2। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज 1/2 इंटू tan phi बाई tan बीटा। लेकिन सीपेज हमारा पैरेलल टू स्लोप होगा तब ये चीज है। अगर हमारा कुछ सर्टेन हाइट एच पे हमारा वाटर टेबल है फ्रॉम द क्रिटिकल प्लेन से, देन वी हैव टू अप्लाई दिस एक्सप्रेशन। जब हमने स्पेशल केस हमने लिया है कि ये जो वाटर टेबल जो है वो पूरा का पूरा हमारा स्लोप पे पहुंच गया है, जहां पे AB जो स्लोप AB है वहां पे पहुंच गया है वाटर टेबल, इन दैट केस वी हैव सीन दैट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है ये आया है। और इसी को हमने बोलता है, जब जब क्वेश्चन में बोलेगा कि सीपेज जो हो रहा है पैरेलल टू द स्लोप हो रहा है, तो इन दैट केस वी हैव टू अप्लाई दिस फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये चौथा और लास्ट केस था किसके लिए, इनफाइनाइट स्लोप के लिए। सो इनफाइनाइट स्लोप के केस में हमने सारा चीज डिस्कस कर लिया। पहला जो हमने डिस्कस किया क्या, पहला केस कि हमारा कोहेजन लेस सॉइल होगा, और कोहेजन लेस सॉइल के केस में पहला केस जो है कि व्हेन सॉइल इज ड्राई और वहां पे स्लोप एंगल अगर बीटा है और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है सॉइल की phi है, इन दैट केस वी हैव सीन दैट फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू tan phi बाई tan बीटा। और हमने बताया था कि जब phi की वैल्यू जो होगी वो बीटा से ज्यादा होगी तो देन आवर स्लोप इज स्टेबल, और जब phi की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होगा देन इन दैट केस स्लोप जो है वो क्रिटिकल पोजीशन में है, और phi की वैल्यू अगर बीटा से कम हो गई तो स्लोप जो हमारा अनस्टेबल होगा। ये तो हमने एक फॉर्म में बोला। या अनदर वे में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इफ द स्लोप इज स्टेबल आवर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ग्रेटर देन 1, our factor of safety is exactly equal to 1, then it is in critical condition, और अगर less than 1 factor of safety then it is unstable। और उसके बाद मैंने बोला कि जो हमारा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है इन केस ऑफ कोहेजन लेस सॉइल और व्हेन सॉइल इज ड्राई या सबमर्ज कंडीशन में होगा, इन बोथ द केसेस
द फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल नॉट चेंज, ओनली क्या चेंज होगा, सो ओनली द नॉर्मल स्ट्रेस एंड द शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द जो सॉइल होगा वो हमारा चेंज होगा। जो हमारा व्हेन आवर सॉइल इज ड्राई तो वहां पे नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, दैट इज जो अभी हमारा यूनिट वेट है वहां पे गामा इंटू जेड इंटू कॉस स्क्वायर बीटा और शियर स्ट्रेस गामा जेड इंटू कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। बट व्हेन आवर सॉइल इज सबमर्ज्ड तो वहां पे गामा की जगह पे हमारा सबमर्ज्ड यूनिट वेट आ जाएगा। लेकिन जो रेशियो जो होगा वहां पे फिर से हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो क्या है, रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेंथ टू द शियर स्ट्रेस, तो वो वैल्यू सेम आएगी, दैट इज एक्जैक्टली इक्वल टू द tan phi by tan बीटा। तो इस दूसरा केस जो हमने डिस्कस किया कि हमारा कोहेजन भी अगर सॉइल में है, व्हेन कोहेजन भी सॉइल में है और फाई भी है, इन दैट केस हमने बोला कि शियर स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू द मोड कूलम वी नो दैट tau is equal to c plus sigma and tan phi, और वहां से c की वैल्यू भी होगी। तो वहां पे हमने क्या देखा कि tau f की वैल्यू जो होगा c plus sigma n into tan phi डिवाइडेड बाय गामा z sin बीटा cos बीटा, और वहां से हमने कुछ एक्सप्रेशन को डिराइव किया था कि जब ये z की वैल्यू कब क्रिटिकल हो जाएगी, जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू जो है एग्जैक्टली हमारा क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। और इन दैट केस जो हमने निकाला था एक नंबर जो हमारा आया था c by gamma sc, जिसको हमने क्या बोला था, स्टेबिलिटी नंबर। उसको हमने बोला था कि ये हमारा स्टेबिलिटी नंबर है, और ये जो स्टेबिलिटी नंबर की वैल्यू होगा उसको हमने दूसरे फॉर्म में भी लिखा था। स्टेबिलिटी नंबर की वैल्यू को हमने क्या लिखा था, दैट इज cos स्क्वायर बीटा इनटू tan बीटा माइनस tan phi। अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ए वर्टिकल कट इज मेड इन ए क्ले डिपॉजिट हैविंग कोहेजन 30 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड phi इज इक्वल टू 0, और गामा की वैल्यू कितनी है, 16 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द कट व्हिच कैन बी टेम्पररी सपोर्टेड। हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट जो है, तो हमने अभी जब हमने अर्थ प्रेशर थ्योरी पढ़ा था तो वहां पे हमने देखा था कि जो मैक्सिमम हाइट ऑफ द कट जो है वो हमने निकाला था, दैट इज 4c by gamma into स्क्वायर रूट ऑफ k। उससे तो हम लोग अप्रोच कर सकते ही हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है स्टेबिलिटी नंबर से भी हम लोग क्रिटिकल हाइट को निकाल सकते हैं। अभी हमने बताया कि जो है हमारा जो अभी हमने बताया कि स्टेबिलिटी नंबर जो होगा वो क्या होता है, c by gamma into sc। अभी हमने बताया जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 1 हो गया तो ये वाला वैल्यू जो आया था, और यहाँ पे स्टेबिलिटी नंबर जो है phi इज इक्वल टू 0 के लिए दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 0.261। तो 0.261 इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है, 30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, गामा की वैल्यू जो है वो 16 है इंटू sc। तो यहाँ से हम लोग sc की वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा sc की वैल्यू। सो sc कैन बी कंप्यूटेड एज sc इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज 30 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 0.261। तो यहाँ से हम लोग क्रिटिकल हाइट निकाल सकते हैं कि हमारा क्रिटिकल हाइट है कितना आ गया, 30 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 0.261। सो दिस वैल्यू इज 7.184 मीटर। ये हमारा अनसपोर्टेड हाइट है, ठीक है। क्वेश्चन जो है आज के सेशन का हमने लिया है गेट के एग्जाम से, दैट आस्क्ड इन 2003 ए ग्रैनुलर सॉइल पॉजेस सैचुरेटेड डेंसिटी। जो एक ग्रैनुलर सॉइल है मतलब कि कोहेजन की वैल्यू 0 है, वहां की सैचुरेटेड डेंसिटी कितनी है, दैट इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और द इट्स इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है वो कितना है, दैट इज 35 डिग्री। इफ द डिजायर्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू दे दी है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 1.5। द सेफ एंगल ऑफ स्लोप एंगल पूछा जा रहा है, बीटा की वैल्यू फॉर दिस सॉइल व्हेन सीपेज अकर्स एट एंड पैरेलल टू द स्लोप। अभी मैंने एक कंडीशन डिराइव किया था कि जब सीपेज हमारा पैरेलल टू द स्लोप होगा, सीपेज अकर्स कर रहा है और पैरेलल टू द स्लोप सरफेस होगा, देन जो हमारा हमने तो यहाँ पे देखा था ये हमारा जो है कुछ इस तरह यहीं पे वाटर टेबल आ गया है, और ये वैल्यू जो है हमारी कितनी है, z है अगर, और सीपेज कुछ इस तरह पैरेलल टू द स्लोप हो रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई थी, गामा सबमर्ज डिवाइडेड बाय गामा सैट इनटू tan phi डिवाइडेड बाय tan बीटा। अगर जब हमारा एच हाइट पे था, जब इनिशियली पोजीशन जब हमारा वाटर टेबल यहाँ पे था एच हाइट पे, तो हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखा था कितना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 1 माइनस गामा w इंटू एच डिवाइडेड बाई गामा सैट इंटू जेड इंटू tan phi बाई tan बीटा, tan phi बाई tan बीटा। सीपेज तो उस वक्त भी अकर्स हो रहा था, लेकिन जैसे ये h की वैल्यू जो है z पे पहुंच गई थी, व्हेन h इज इक्वल टू z,
तब हमारी वैल्यू जो आ गई थी ये, और इसी को मैंने बोला था कि ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होगा वो क्या होगा, व्हेन सीपेज अकर्स एंड इट इज पैरेलल टू दी स्लोप। तो अब निकाल दो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में कितना, 1.5। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.5, यहां से 1.5। गामा सबमर्ज की वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे। गामा सबमर्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो गामा सबमर्ज, गामा सेट दिया हुआ है 20, तो 20 माइनस 9.81, 20 माइनस 9.81 डिवाइडेड बाई गामा सेट 20 इंटू tan फाइव। tan फाइव की वैल्यू दी हुई है, 5 35 डिग्री, सो tan फाइव जो हो गया वो 35 और डिवाइडेड बाई tan बीटा। तो यहां से tan बीटा की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। tan बीटा वो कितनी हो जाएगी, तो tan बीटा इज इक्वल टू 20 माइनस 9.81, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 20 माइनस 9.81 डिवाइडेड बाई 20 इंटू tan 35। ये वैल्यू जो है वो 0.3567 और डिवाइडेड बाई 1.5, तो tan बीटा कैन बी रिटन एज 0.357 डिवाइडेड बाई 1.5, so 1.5, so this value is coming 0.357 divided by 1.5, so it is coming 0.238, so यहाँ से बीटा हम लोग निकाल लेंगे। बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.238। ये वैल्यू जो आ गई वो बीटा इज इक्वल टू 13.387 डिग्री। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 13, मतलब अप्रोक्सीमेटली जो है हमारा कितना वैल्यू आ गया, 13 डिग्री। डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें किसी को डाउट है, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? नो सर। हाँ, तो सीपेज अगर पैरेलल होगा तो एक चीज का ध्यान रखना है कि कौन सा केस कहां पे अप्लाई करना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है बस। बाकी बिल्कुल आसान है ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक बहुत आसान है। कहां पे क्या अप्लाई करना है, बस ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। सर 5 और 5 सेम होगा जी, 5 और 5। हाँ वही है, यहाँ पे इफेक्टिव एंगल लिया गया तो उसी चीज को हमने वहां पे लिखा है, 5 ही होगा यहाँ पे। अच्छा, अलग से तो दिया नहीं हुआ है ना कुछ। सर यस सर। सो जो हमारा जो है ये थर्ड क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन जो है कि लॉन्ग स्लोप इज फॉर्म्ड इन ए सॉइल विथ c डैश इज इक्वल टू 0 एंड phi डैश इज इक्वल टू 34 डिग्री। Form stratum lies below the slope and phi dash is equal and it is assumed that water table may occasionally rise to the surface with seepage taking place parallel to the slope। फिर वही है, आपका सीपेज जो है यहाँ पे क्या है, पैरेलल टू द स्लोप है। यूज गामा सेट इज इक्वल टू 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। द मैक्सिमम स्लोप एंगल इन डिग्री टू इंश्योर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 assuming a potential failure surface parallel to the slope would be। सेम क्वेश्चन है जो पहले में हमने किया था। so, जब हमारा क्या है कि हमारा जो सीपेज जो है वो पैरेलल टू द स्लोप है, सीपेज पैरेलल टू द स्लोप, तो अभी हमने देखा है कि क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हमने लिखा था दैट इज इक्वल टू गामा सबमर्ज डिवाइडेड बाय गामा सेट इनटू tan फाइव डिवाइडेड बाय tan बीटा। सो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे भी जो बोला कि phi डैश की वैल्यू जो है वो 34 डिग्री है, c डैश तो 0 है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो 1.5 है। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 1.5 इज इक्वल टू गामा सेट की वैल्यू, सैचुरेटेड यूनिट वेट दिया हुआ है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो यहाँ पे गामा डब्ल्यू की वैल्यू भी दे दी है, हमें 10 लेना है, डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10। आपका जो है इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कितना है, 34 डिग्री, सो 34 डिग्री डिवाइडेड बाई tan बीटा। तो सेम क्वेश्चन है, 1.5 इज इक्वल टू 18 माइनस 10, तो ये 8 डिवाइडेड बाई 18,
8 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10 34 डिवाइडेड बाई 10 बीटा। तो यहां से 10 बीटा की वैल्यू निकाल लो, कितनी हो जाएगी 10 बीटा? 8 बाई 18 इंटू 10 34 डिवाइडेड बाई 1.5। तो ये वैल्यू जो आ गई 0.1998। तो यहां से बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, tan इनवर्स। सो बीटा जो आ गया वो 11.3 डिग्री, 11.3 डिग्री। देखो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है, 11.3 डिग्री। सो ये दोनों सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज आपको फिल करना था आंसर, 2014 में पूछा था जब आईआईटी खड़गपुर ने कंडक्ट कराया था। सो एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्लोप, इनफाइनाइट स्लोप है, मेड अप ऑफ C5 सॉइल। यहाँ पे C5 सॉइल है, मतलब कि कोहेजन के इफेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते एंड वी कैन नॉट अप्लाई 10 फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 10 फाई बाई 10 बीटा, बिकॉज यहाँ पे कोहेजन भी है। तो कोहेजन की वैल्यू जो है वो कितनी है, दैट इज 20 किलो पास्कल, और ड्राई यूनिट वेट जो है वो कितना है 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड क्रिटिकल हाइट ऑफ द स्लोप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे दिया है, मतलब कि स्लोप एंगल दे दिया है आपको 40 डिग्री, और क्रिटिकल हाइट की वैल्यू जो है वो कितनी है 5 मीटर रेस्पेक्टिवली, टू मेंटेन द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल। तो क्या है, आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी सबसे पहले लिखिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टाउ एफ बाई टाउ, और टाउ एफ को क्या लिख सकते हैं, C प्लस सिग्मा n tan फाई डिवाइडेड बाई टाउ, और हमने मालूम है कि सिग्मा n का एक्सप्रेशन क्या है, तो गामा z cos स्क्वायर बीटा इंटू tan फाई डिवाइडेड बाई टाउ की जगह पे क्या लिखेंगे, गामा z sin बीटा इंटू cos बीटा। अब ये जो z है वो क्रिटिकल हो जा रहा है, कब क्रिटिकल हो जाएगा, हमने बताया है कि जब ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू कितनी हो जाए 1, यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गामा इंटू SC साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, दैट इज इक्वल टू C प्लस गामा इंटू SC कॉस स्क्वायर बीटा इंटू tan फाई। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे सब चीज दिया हुआ है, SC की वैल्यू भी दे दी है, बीटा भी दे दिया है, गामा भी दी है, C भी दी हुई है, सबको वैल्यू को रख दो। तो गामा की वैल्यू जो है वो कितना है, गामा इज इक्वल टू 16, सो 16 इंटू SC की वैल्यू जो है वो कितना है 5 मीटर, सो 5 इंटू साइन बीटा इंटू सॉरी साइन बीटा की वैल्यू दी हुई है 40 डिग्री, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू साइन 80। इसको डायरेक्टली हमने 1/2 से डिवाइड करके और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा साइन 2 बीटा, कितने हो गए साइन 80 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू कोहेजन की वैल्यू जो है वो 20 किलो पास्कल, तो 20 प्लस 16 इंटू 5 इंटू कॉस स्क्वायर 40 इंटू tan फाई, सारा वैल्यू निकाल लो। तो ये 16 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, 40 इंटू साइन 80, 40 इंटू साइन 80 डिग्री, तो ये कितना हो गया 39.39, ये वैल्यू जो हो गया वो 39.39 इज इक्वल टू 20 प्लस 16 इंटू 5 80 इंटू कॉस 40 का स्क्वायर, ये वैल्यू हो गया 46.94, 46.945, सो 95 tan फाई। अब यहां से निकाल लो तो कितना हो गया tan फाई की वैल्यू जो हो गई, tan फाई कितना हो गया निकाल लो यहां से 39.39 माइनस 20, निकाल के बताइए कितनी आ रही है फाई की वैल्यू। फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो 39.39, ये वैल्यू जो है 39.39, 20 प्लस ये वैल्यू जो आया है वो कितना 46.95 इंटू tan फाई, तो यहां से tan फाई जो हो गया tan फाई इज इक्वल टू 39.39 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 46.95, so this value is 0.413, so यहाँ से phi is equal to tan inverse 0.413,
तो ये वैल्यू कितनी आ गई 22.44 डिग्री, 22.44 डिग्री फाई की वैल्यू। So the angle of internal friction of the soil is 22.44 डिग्री। इस क्वेश्चन पे किसी को डाउट है? तो ये भी बस उसी तरह का था, C5 सॉइल है, हमें डायरेक्टली सी का एप्लीकेशन कर देना था, थोड़ा सा दूसरे केस पे ये डिपेंड था। अगला क्वेश्चन, ये जो है वो 2013 में जब आईआईटी बॉम्बे ने ऑर्गेनाइज किया था तो उस वक्त पूछा गया था 2 मार्क्स में। द सॉइल प्रोफाइल अबव द रॉक सरफेस फॉर 25 डिग्री इनफाइनाइट स्लोप इज शोन इन द फिगर वेयर SU is the undrained shear strength and gamma T is the total unit weight. The slip will occur at a depth. कितने डेप्थ पे, और ये फिगर आपका दिया हुआ है, फिगर जो है यहाँ पे दिया हुआ है। आप देखो कि 2 सॉइल है, एक सॉइल ए और एक सॉइल बी। सॉइल ए की जो प्रॉपर्टी है, गामा टी की वैल्यू 16 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कोहेजन की वैल्यू जो है वो 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और ये 5 मीटर की है। 5 मीटर के नीचे दूसरा सॉइल जो है वो भी 5 मीटर थिकनेस की है, और उसका जो यूनिट वेट है वो 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और जो शेयर स्ट्रेंथ है वो 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और जो है बीटा की वैल्यू 25। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो स्लोप है वो कितने डेप्थ पे जो है वो फेल हो जाएगा या स्लिप हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम चेक कर लें कि ये सॉइल ए का जो स्लोप है वो फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने मान लिया है कि ये यहां से अगर हमने माना है कि एक्स डेप्थ पे जो है वो हमारा फेल हो रहा है, यहाँ पे मान लो कि हमने एक्स डेप्थ लिया है, यहाँ से इसको हमने नाम दे दिया दिस इज ए बी, तो यहां से हमने मान लिया है। तो सबसे पहले तो जब कोहेजन है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू जो है वो क्या अभी हमने लिखा है, फैक्टर ऑफ C5 सॉइल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू C प्लस गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा इंटू tan फाई डिवाइडेड बाई आपका जो हो जाएगा गामा जेड इंटू साइन बीटा इंटू कॉस बीटा। अब यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे फाई की वैल्यू नहीं है, मतलब कि ये जो है पूरा का प्योरली क्ले है, जो सॉइल जो है वो प्योर क्ले है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो फाई की वैल्यू को 0 कर दो, यहाँ पे फाई इज इक्वल टू 0 करके देखिए क्या आ रहा है एक्सप्रेशन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। तो ये टर्म जो है वो 0 वैनिश हो गया। तो क्या हो गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई गामा इंटू जेड, गामा इंटू, या तो हम यहाँ पे या ये जब हमने x लिया है तो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो आ जाएगा x का आ जाएगा, तो x के जगह पे हम लोग z अगर रख दें तो गामा z साइन बीटा इंटू कॉस बीटा। अब जब आप z की वैल्यू को 5 मीटर रखो, व्हेन z इज इक्वल टू 5 मीटर, हम ये पहले चेक कर लेते हैं कि इस वाले डेप्थ पे क्या फेल है या नहीं है। इस वाले लेयर में अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 1 से ज्यादा आ गई तो नहीं फेल होगा। तो यहाँ पे देखो 1 से ज्यादा आ रहा है, कम, अगर 1 से कम होगा तो फिर देखेंगे कितने डेप्थ पे फेल होगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू, इसका कोहेजन कितना है, दैट इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 40 डिवाइडेड बाई गामा, गामा की वैल्यू कितनी है 16 इंटू 5, तो 16 इंटू 5 इंटू 1/2 इंटू साइन 2 बीटा। तो साइन कितना है, बीटा की वैल्यू कितनी है 25 डिग्री, तो साइन 50। तो ये वैल्यू हो गया 80 डिवाइडेड बाई 80 कैंसिल हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाई साइन 50। ये वैल्यू कितनी आ गई 1.305। तो ये तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से ज्यादा है, तो क्या हो गया, इस लेयर में सॉइल तो सेफ है यहां तक, मतलब कि यहां तक अगर हम लोग पहुंच गए हैं तो कोई सॉइल का जो है स्लोप का फेलियर नहीं हुआ है, मतलब कि हमारा जो एक्स जो है अगर फेल हुआ होगा तो इस वाले लेयर में हुआ होगा। तो यहां से हमने मान लिया कि एक्स ये है, एक्स जो हमने है ये मान लिया है। अब देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी फिर से निकालिए, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू को हमें निकालना है तो क्या लिख सकते हैं फिर से फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये तो हमने लेयर 1 में देखा था सॉइल ए में, सॉइल ए। अब सॉइल बी में अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, C प्लस गामा 1 इंटू, ये वाले में तो पूरा चल लिए तो कितना हो गया गामा 1 इंटू Z1, इसको हमने Z1 मान लिया है, तो गामा 1 इंटू Z1, गामा 1 इंटू Z1 साइन बीटा इंटू, साइन बीटा कॉस बीटा तो कॉमन ही होगा तो कॉमन ले लेते हैं उसको, ये वाला टर्म तो दोनों में आएगा, तो गामा 1 इंटू Z1 प्लस दूसरे में क्या हो जाएगा, तो सेकेंड टर्म में देखिए क्या हो जाएगा गामा 2 इंटू ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा x माइनस जेड। तो वहां से देखो कि x की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं और उसको यूनिटी करके देखो कि कितना आ रहा है। तो देखिए कितना आ रहा है x की वैल्यू,
यहां से अगर हम लोग देखा जाए तो ये मैंने बोला कि पहले लेयर में तो फेल है नहीं, तो दूसरा लेयर में अगर लिखा जाए तो गामा वन प्लस Z1, यहाँ पे देखो यहां तक अगर पहुंच गए तो गामा वन इंटू Z1 साइन बीटा कॉस बीटा प्लस इस वाले में एक्स, ये तो ये पूरा एक्स है, तो ये हम लोग क्या लिख दे एक्स माइनस जेड, ये वाला कितना हो जाएगा थिकनेस, तो पूरा एक्स माइनस Z1, तो यहां से क्या लिख सकते हैं गामा टू इंटू एक्स माइनस Z1, और पूरा पे हमारा मल्टीप्लाई कर दिया आपने क्या साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, बिकॉज दोनों में साइन बीटा कॉस बीटा तो आएगा ही। ठीक है, अब यहाँ पे अब जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होगा, तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो यहाँ पे देखो निकालो कितना आ रहा है, एक्स का वैल्यू निकाल के देखिए कितना आ रहा है, एक्स की वैल्यू को निकाल के देखिए, तो यहां से क्या हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होगा ये हमारा एग्जैक्टली 1 होना चाहिए। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सी 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो 60 डिवाइडेड बाई गामा वन जेड वन कितना हो जाएगा 16 इंटू 5, तो कितना हो गया 80, तो ये वैल्यू जो हो गया वो 80 प्लस गामा टू, तो गामा टू कितना है, गामा टू जो है वो 20 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू, और ये वैल्यू निकाल लो आप साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, मतलब कि 1/2 साइन 50, देखो कितना आ रहा है, इसको अगर लिखा जाए 1/2 इंटू साइन 50, तो यहां से हो गया ये वैल्यू जो होगी दो ऊपर ले जाओ, तो ये हो गया 120 डिवाइडेड बाई, देखो कितना आ रहा है, और यहां से फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू को 1 कर दो, अगर बिल्कुल अगर स्लिप पे आ रहा है तो हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो वहां से आप एक्स की वैल्यू को निकाल के देखो कितना आ रहा है, सब लोग कैलकुलेट करिए, सब लोग कैलकुलेट कीजिए, देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे हमने बोला कि 1/2 करके, और यहाँ जो ऊपर है 1/2 इंटू साइन 50 है, तो ऊपर चला गया तो 120 डिवाइडेड बाई 80 प्लस 8.83 मीटर आएगा। हाँ म्यूट करिए, 20x माइनस 100 इंटू साइन 50, साइन 50 की वैल्यू कितनी है, साइन 50 जो है वो 0.766। अब ये वाले वैल्यू को यूनिटी कर दो, तो ये हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो 1, दैट इज इक्वल टू 1, बिकॉज क्रिटिकल कंडीशन में कब होगा, जब हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 1 हो जाए, तो 120 डिवाइडेड बाई 20x माइनस 20x माइनस 20 इंटू 0.766, तो यहां से हो गया आपका, इसके वैल्यू को अगर हमने यहाँ पे लिख दिया तो क्या हो जाएगा 20x माइनस 20 इंटू 0.766 इज इक्वल टू 120, तो यहां से देखो x की वैल्यू जो आएगा वो आएगा 8 पॉइंट कुछ आएगा वैल्यू इंटू 0.766 इज इक्वल टू 120, तो 120 डिवाइडेड बाई 0.766, तो ये आ गया इतना प्लस 20 डिवाइडेड बाई 20, 8.83, तो यहां से x की वैल्यू जो आ गई 8.83 मीटर, इतने पे जाके ये स्लीप हो जाएगा, ये स्लोप, तो वही बोला जा रहा है कि द स्लीप विल अकर एट ए डेप्थ ऑफ 8.83 मीटर। अब अगला क्वेश्चन फिर गेट 2007 में पूछा हुआ है, डायग्राम डायरेक्टली इसी से तो मैंने डिराइव किया था उसको, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ एन इनफाइनाइट सॉइल स्लोप शोन इन द फिगर हैविंग द प्रॉपर्टीज, सी की वैल्यू 0 है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज 35 डिग्री एंड ड्राई यूनिट वेट इज 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, सैचुरेटेड यूनिट वेट जो है वो 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो इस जो डायग्राम है उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो निकाला गया था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट इज इक्वल टू 1 माइनस गामा w इंटू एच डिवाइडेड बाई गामा सैट इंटू जेड इंटू tan phi बाई tan बीटा, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहां से हम लोग निकाल सकते हैं 1 माइनस गामा w
तो गामा डब्ल्यू जो है यहाँ पे ले लेंगे 9.81, सो 9.81 इंटू एच की वैल्यू कितनी है देखो, क्रिटिकल जो प्लेन है उससे कितने हाइट पे है वाटर टेबल, 8 मीटर, सो 8 मीटर, एच की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाय गामा सेट की वैल्यू जो है वो 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, सो 20 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है, तो जेड इज इक्वल टू 10 मीटर, सो जेड इज इक्वल टू 10 इंटू 10 फाइव, सो 10 फाइव की वैल्यू जो है 35 डिग्री, सो 10 35 डिवाइडेड बाई 10 बीटा, बीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहां से निकाल लो फैक्टर ऑफ सेफ्टी। So this value 1 minus 9.81 into 8 divided by 200 into 10 35 divided by 10 30, तो ये वैल्यू जो आ गई वो 0.736, 0.736। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है हमारा जो होगा दैट इज ए ऑप्शन जो है वो। अगला क्वेश्चन जो है हमने कन्वेंशनल क्वेश्चन लिया है सिविल सर्विसेज एग्जाम से। बोला जा रहा है कि एन इनफाइनाइट नेचुरल स्लोप विथ एंगल ऑफ स्लोप 15 डिग्री inclined measured from horizontal has a saturated unit weight of 18 kilonewton per meter cube and an effective angle of internal friction phi is equal to 35 degree. Determine the factor of safety against failure of the slope. पहला पार्ट में बोला जा रहा है when the slope is completely dry or submerged but without seepage, सीपेज नहीं हो रहा है और सॉइल जो हो या तो सबमर्ज हो या ड्राई, बिकॉज दोनों में केस में हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी सेम आना है, इसीलिए वो ड्राई या सबमर्ज बोल दिया है। दूसरा में बोला है कि व्हेन सीपेज अकर्स एट ए पैरेलल टू द सरफेस ऑफ स्लोप, तो दोनों तो आसान ही क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। तो पहला पार्ट जो है देयर इज नो सीपेज, देयर इज नो सीपेज, तो इसमें नो सीपेज में अगर दो केस है, दोनों के केस में हमने देखा कि अगर ड्राई हमारा सॉइल हो या सबमर्ज सॉइल हो, सबमर्ज्ड सॉइल हो, इन ड्राई सॉइल के केस में भी हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो आया था वो कितना आया था 10 5 by 10 सॉरी 10 5 by 10 बीटा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो आया था 10 5 by 10 बीटा। अगर सबमर्ज स्लोप भी होगा तो वहां भी हमने देखा था कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना था 10 5 डिवाइडेड बाई 10 बीटा। तो यहां से आप लोग निकाल लो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पहले केस में क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 10 5 डिवाइडेड बाई 10 बीटा। पाई की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, पाई इज 35 डिग्री, तो 35 10 5 डैश, तो 10 35 डिवाइडेड बाई 10, आपका बीटा जो है वो कितना है, बीटा 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री। अब चाहे स्लोप ड्राई हो या सबमर्ज हो, एक ही वैल्यू आना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो ये वैल्यू आ गया 10 35 डिवाइडेड बाई 10 15, कितनी आ गई फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.61, 2.61 ग्रेटर देन 1, ओके सेफ है। दूसरा केस, सेकेंड केस बोला व्हेन सीपेज अकर्स एट ए पैरेलल टू द सरफेस ऑफ स्लोप। अब हमारा सीपेज अकर्स हो रहा है, सीपेज अकर्स पैरेलल टू द स्लोप, ये भी केस हमने डिस्कस किया है। तो यहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू गामा सबमर्ज बाई गामा सेट इंटू 10 5 डिवाइडेड बाई 10 बीटा। अब गामा सबमर्ज है तो यहाँ पे आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट दिया हुआ है, सैचुरेटेड यूनिट वेट इज 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, सो 18 माइनस 9.81, 18 माइनस 9.81 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10 5, तो 10 5 जो हो जाएगा 35, और 10 5 बाई 10 बीटा की वैल्यू डायरेक्ट हम लोग रख दे 2.61, अभी हमने निकाल लिया है 10 5 बाई 10 बीटा की वैल्यू 2.61, तो यहां से 2.61, तो ये वैल्यू जो हो गई 2.61 इंटू 18 माइनस 9.81 डिवाइडेड बाई 18, तो ये वैल्यू जो आ गई 1.1
187। अब देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को, जो वाटर जैसे फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना रिड्यूस हो रहा है। ड्राई कंडीशन में कितना स्टेबल था, बहुत ज्यादा स्टेबल था हमारा स्लोप, लेकिन एज कंपेयर जैसे सीपेज अकर्स हुआ है, वाटर सीपेज हो गया है सॉइल के थ्रू, तो देखिए कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू घटती जा रही है। तो ये हमारा कंसर्न होता जा रहा है कि हाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्रोच कर रहा है किधर की तरफ, आइदर 1 और लेस देन 1 हो जाएगा अगर ये कंटिन्यूअसली रहा तो। ठीक है। Confined compressive strength of clay in a region is 70 kilonewton per meter square. The density of clay is 20 kilonewton per meter cube. What is the maximum depth of cutting with side slope is 2 horizontal 1 vertical, for which stability number दिया हुआ है 0.17 with a factor of safety 1.5। क्या क्या दिया हुआ है पहले? तो unconfined compressive strength QU is equal to 70 kilonewton per meter square और the density of the clay is 20 kilonewton per meter cube। और यहां से बीटा की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं tan इनवर्स 1/2, so that is equal to tan inverse 1/2 26.56 डिग्री। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन में दे दिया है 1.5, तो हमें हाइट की वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम हाइट। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्टेबिलिटी नंबर जो होता है वो क्या होता है। तो स्टेबिलिटी नंबर कैन बी रिटन एज stability number can be written as stability number that is equal to, क्या लिखा था मैंने, cos स्क्वायर बीटा इंटू tan बीटा माइनस tan फाई। स्टेबिलिटी नंबर दिया हुआ है 0.17, तो 0.17 इज इक्वल टू cos स्क्वायर, अभी बीटा की वैल्यू हमने निकाला है कितना 26.56, so 26.56 into tan 26.56 माइनस tan फाई, तो यहां से फाई निकाल लो। यहां से फाई की वैल्यू जो आ जाएगी 0.17 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर 26.56, और उसमें से tan 26 में से माइनस कर दोगे तो वहां से फाई की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी, ये वैल्यू जो आ रहा है 16.04 डिग्री। सब लोग चेक करिए। अब यहां से हम लोग CU की वैल्यू निकाल सकते हैं। CU इज इक्वल टू QU डिवाइडेड बाई 2 tan 45 प्लस पाई बाई 2। तो हमारा QU जो है वो कितना है 70 डिवाइडेड बाई 2 इंटू tan 45 प्लस 16.04 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से कोहेजन की वैल्यू जो आ जाएगी 35 डिवाइडेड बाई 10, 45 प्लस 16 मतलब कि 58.04। तो ये वैल्यू जो आ रहा है वो 26.35 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अंडर कोहेजन। अब यहां से हम लोग जानते हैं कि स्टेबिलिटी नंबर को क्या लिखा जा सकता है। स्टेबिलिटी नंबर जो है वो C डिवाइडेड बाई गामा इंटू SC, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो हमने क्या बताया था SC/H। तो वहां से SC क्या लिख सकते हैं C बाई गामा इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू H। तो यहां से हम लोग जो स्टेबिलिटी नंबर है दैट इज इक्वल टू 0.17, सो 0.17 इज इक्वल टू कोहेजन की वैल्यू अभी हमने निकाल लिया है 26.35, तो 26.35 डिवाइडेड बाई गामा की वैल्यू कितनी है 20, सो 20 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.5, सो 1.5 इंटू H। तो यहां से H जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 26.35 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 1.5 इंटू 0.17। तो ये वैल्यू जो आ गई 5.166 मीटर। अब दूसरा केस में क्या बोला जा रहा है, सेकेंड केस बोला जा रहा है, पहले हाइट तो है, बोला जा रहा है कि अप टू व्हाट स्लोप एंगल दिस डेप्थ वैल्यू होल्ड गुड। अगर हम लोग इसी वैल्यू को लेकर दूसरा एंगल जो है वो निकाले तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो इस हाइट से हम लोग क्या निकाल लें, स्टेबिलिटी नंबर SN इज इक्वल टू, तो सबसे पहले तो SN जो आप निकाल लो फिर से इस हाइट को लेकर, तो C/FC इंटू गामा H,
यहां से स्टेबिलिटी नंबर क्या हो जाएगा, सी बाई एफ सी इंटू गामा इंटू एच। ये वैल्यू कितनी आ रही देखो, और ये एस एन को फिर हम लोग लिख देंगे क्या, कॉस स्क्वायर बीटा टेन बीटा माइनस टेन बाई, वहां से बीटा निकाल के देखिए कितना आ रहा है, मैक्सिमम कितने एंगल तक हम लोग जा सकते हैं, मैक्सिमम कितने एंगल तक हम लोग जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहां से सी की वैल्यू जो है एच है हमारा, यहां से हम लोगों ने सी निकाल लिया, तो सी क्या हो जाएगा 26.35 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 20 इंटू 5.166। यहां से स्टेबिलिटी नंबर कितनी आ गई 26.35 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 20 इंटू 5.166। तो ये वैल्यू है। अब उस वैल्यू को फिर से कॉस स्क्वायर बीटा करके, और जो देखो ये निकाल के देखो कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा 2 इंटू 10 बीटा माइनस 10 फाइव। अब देखो कितना आ रहा है बीटा की वैल्यू, ये वैल्यू तो वो वही रहेगी 0.17। बीटा 2 क्या है सर? अरे फिर से जो दूसरा एंगल कितना सस्टेन कर सकता है, इसी सेम स्टेबिलिटी नंबर के लिए बोला जा रहा है कि अप टू व्हाट स्लोप एंगल, अब दूसरा स्लोप एंगल कितने हाइट स्लोप तक हम इसको स्टेबिलिटी जो स्लोप बना सकते हैं, जो स्लोप कितने एंगल तक सस्टेन रह सकता है, कितना स्लोप एंगल प्रोवाइड किया जाए। पहले स्लोप एंगल जो हमने निकाला था वो कितना था 26 पॉइंट कुछ आया था, पहला जो हमने बीटा जो निकाला था tan इनवर्स 1/2 कितना आया था 26.56। तो यहां तक तो सेफ ही है, लेकिन कितने एंगल तक और एक्सटेंड कर सकते हैं, तो वही बीटा 2 है। दूसरा फिर से हमने निकाला सेम स्टेबिलिटी नंबर। हाँ तो यहां से निकालिए कितना आ रहा है बीटा 2, 0.1 स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा 2 इंटू tan बीटा 2 माइनस tan फाइव। और tan फाइव की वैल्यू 5 वही रहेगी, फाइव जो हमने निकाला था कितना 16.04, तो 16.04। तो जो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहां से बीटा 2 की वैल्यू देखो कितना आ रहा है, जल्दी से निकालो 0.17, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा है, तो कॉस स्क्वायर बीटा है मतलब कि कॉस बीटा tan बीटा को साइन बीटा बाई कॉस बीटा, तो ये साइन बीटा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा 2 इंटू tan 16.04। तो ये हो गया वैल्यू, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो बीटा 2 की वैल्यू जो है वो 79.47 डिग्री। इस एंगल तक हमारा सॉइल जो है जो स्लोप होगा वो सस्टेन कर सकता है। तो बोला जा रहा है कि अप टू व्हाट स्लोप एंगल दिस डेप्थ वैल्यू होल्ड गुड, इसी डेप्थ के लिए हम स्लोप को कहां तक बढ़ा सकते हैं, तो ये स्लोप जो हमारा एक्सटेंड कर सकते हैं 79.47 फ्रॉम 26 डिग्री टू 26.56 डिग्री टू कहां तक हम लोग बढ़ा सकते हैं 79.47 डिग्री तक हम लोग बढ़ा सकते हैं, इसी हाइट पे जो हाइट हमने निकाला है 5.17, ठीक है, वहां तक हम लोग बढ़ा सकते हैं। इससे ज्यादा अगर हो जाएगा तो फिर हमारा स्लोप का फेलियर हो जाएगा।